Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are gonna solve exercise 1.3 of our chapter number 1, real numbers. So let's start our lecture for today. Repeat after me. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. So question number 1 of exercise 1.3 says the sum of three consecutive integers is 42. What does it mean when I say the term when I say consecutive integers? So these are the type of the numbers जिनका जो difference होता है is always 1. Okay, like for example, if I write 1, 2, 3, so the difference between 1 and 2 is 1, and 2 and 3 is also 1. So these are the three consecutive integers. Okay, but if I write it like this, 1, 2, and 4, so the difference between 1 and 2 is 1 कि प्लस 1 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे प्लस 2 ऐड हो रहा है, एंड देन वी गेट 4. सो दीज आर नॉट द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. ओके, सो उन्होंने हमें कहा है कि आपने थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 42 होना चाहिए. सो लेट सपोज हम कहते हैं लेट द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x plus 1 and x plus 2. Okay, so according to the question, the sum of these three consecutive integers must be 42. Okay, so अब हमने जो suppose किए हुए हैं अपने consecutive integers उनको हम add कर देते हैं, which is x plus 1 plus x plus 2, which is equals to 42 according to the question. Now जो variables हैं उनको आप add करेंगे और जो constant values हैं वो add होंगे. वेरिएबल्स के आपके पास 3 है, x 3x है और सबका कोफिशिएंट 1 1 है, सो इट विल बिकम 3x, राइट. एंड द कांस्टेंट इज +1 एंड +2 व्हिच विल बी इक्वल टू +3 इक्वल्स राइट हैंड साइड पे 42 एज इट इज, राइट. नाउ इस पॉजिटिव 3 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे, इट विल बिकम -3. सो 3x इक्वल्स 42 minus 3, and 42 minus 3 equals 39. और यहाँ पे जो 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इफ आई शिफ्ट इट ऑन द राइट हैंड साइड इट विल डिवाइड 39. ओके, so x will remain left on the left hand side, and if we do the cancellation, so we'll get 3 1s are 3 and 3 3s are 9, x equals 13. so our first integer is 13. और हम लोगों ने सेकेंड इंटीजर क्या सपोज किया हुआ था, x plus 1, राइट. तो यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करो, x की वैल्यू क्या है 13, 13 plus 1 equals 14. So our second integer is 14. And the third one we supposed x plus 2, just put the value of x over here which is 13, and 13 plus 2 equals 15. So our three consecutive integers जिनका sum 42 है are 13, 14 and 15. This is your answer for the question number 1. Okay, I hope you get it. Now let's see question number 2. Question number 2 says the diagram shows right angled ABC in which the length of AC is given. The area of triangle is also given. We have to find the length of its one side, which is this one. Okay, AB. Where A and B are integer. और उन्होंने हमें कहा है कि जो आपका आंसर है that must be of this form. ठीक है, इस फॉर्म का होना चाहिए आपका आंसर. So let's try to solve it. First tell me what's the formula to find the area of a triangle. Yes, it's half of base into height, right? Base यहाँ पे आपके पास क्या है? Let me zoom it so you can see it more clearly. So the base of this triangle is this one, AC, and the height is AB, which we have to find according to the question. Okay, and this area of the triangle is already given, which is square root 3 plus square root 5 centimeter. Okay, so
सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल का. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. एरिया इज गिवन विच इज, दिस वन इज योर एरिया, 1 प्लस square root 15, right, equals to half into base is given which is square root 3 plus square root 5, this is square root 3, and height is not given और उसका name है हमारे पास which is AB. Okay, now this term is multiplying over here. इसको आप left hand side पे shift कर दो, it will divide, right? So we'll write it like this: 1 plus square root 15 divided by square root 3 plus square root 5, एंड 2 को भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. एंड ऑन द राइट हैंड साइड जस्ट ए बी इज लेफ्ट विच वी नीड टू फाइंड. नाउ if you recall your previous knowledge of exercise 1.1, you know how to solve it, right? You need to rationalize the denominator. So आप इसको denominator को rationalize कर दो. Numerator will remain as it is, 2 into 1 plus square root 15 divided by square root 3 plus square root 5. और इसको हम multiply divide किससे करेंगे? Same denominator से but with opposite sign. Good. Square root 5 square root 3 minus square root 5 equals AB. अब डिनोमिनेटर में आपके पास एक फॉर्मूला क्लोज होता है विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. एंड डिनोमिनेटर पे आपके पास ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 1 प्लस स्क्वेयर रूट 15 इंटू स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय square root 3 square minus square root 5 square equals to AB. Right? Now you just need to solve it. यहाँ पे आपके पास जो स्क्वायर है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई द न्यूमिनेटर. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको एक्सपैंड करेंगे एक्सप्रेशन को एंड देन यू विल गेट द आंसर ए बी. ठीक है, तो डू इट योरसेल्फ. यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट. ओके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई लेट मी नो. Now let's see question number 3. Question number 3 is about a rectangle जिसकी उन्होंने हमें एक साइड ऑफ लेंथ बता दी है. लेंथ एक साइड बता दी है कि लेंथ बता दी है विच इज 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मीटर. एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन दिस फॉर्म. हमें ये कहा गया है कि रेक्टेंगल का एरिया आपने फाइंड करना है जबकि आपके पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है और आपका जो आंसर है एरिया का वो इस फॉर्म में आना चाहिए. ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल लिखना है, आपने रेक्टेंगल बनाना नहीं है. ओके, यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ आपके पास क्या गिवन है विच इज 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर और ब्रेथ आपके पास क्या गिवन है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2. तो जस्ट पुट द वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 अंडर रूट 2. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली मल्टीप्लाई इट. आप इसको मल्टीप्लाई करें. सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें. इस एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 एलसीएम ले लें और फिर उसके बाद आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें हर एक्सप्रेशन के साथ एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, एंड टेल मी द आंसर. Question number 4 is about
वी वांट टू फाइंड द टू नंबर्स जिसका सम 68 होना चाहिए और जो डिफरेंस है वो 22 होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ वी डोंट नो कि व्हाट आर द नंबर्स, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर्स को सपोज कर लेंगे कि कैसे सपोज करेंगे, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, ओके। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि जो टू नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो 68 होना चाहिए। तो इट मींस इफ आई ऐड x प्लस y, सो आई गेट 68, right? And the second information which is given in the question is कि the difference is also of that same number is 22, ठीक है। So if I subtract these two numbers which is x and y, x minus y equals होता है 22 के according to the question, ठीक है। So see we get two equations, इसको आप नाम दे दो ए बी 1 2 whatever you want, ओके। सो नाउ अब आपके पास डिफरेंट मेथड हैं दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू सॉल्व। सो द इजीएस्ट वन इज क्या मैं यहाँ पे इसको कैंसिलेशन करती हूँ, मैं आई विल राइट इट लाइक दिस कि जस्ट ऐड इक्वेशन 1 and 2, if I add these two equations, तो इससे ये होगा कि जो पॉजिटिव y है और जो नेगेटिव y है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, and here just 2x remains, and 68 plus 22 is 90, और यहाँ पे 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, if I shift it on the right hand side it will divide 90, so x equals 90 divided by 2, और 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 45, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 45, राइट। अब आपने क्या करना है कि जो x की वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इज टोटली अप टू यू, किसी में भी पुट करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ओके। सो पुट value of x 45 minus y equals 22, और 45 को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम नेगेटिव 22 minus 45 minus y equals 45 minus 22 will get 23, and with a greater number the sign is negative, so आंसर में भी हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और both negative will cancel out each other and we'll get the value of the y which is 23, okay। So these are the two numbers basically, x equals 45 and y equals 23, जिनको अगर हम add करते हैं we get the 68, or if we take the difference of these two numbers we get the 20, we get 22, okay। So now question number 5. Question number 5 is the weather is in Lahore was usually warm during the summer of 2024. The TV news reported the temperature as high as 48 degrees Celsius. By using the formula this, find the temperature as Fahrenheit scale. The given temperature is in Celsius. We just need to convert it in Fahrenheit scale. और उसका उन्होंने हमारे पास formula given है, which is degree Fahrenheit equals 9/5 degrees Celsius plus 32, right? गिवन टेम्परेचर हमारे पास क्या है 48, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो सेल्सियस का सिंबल नजर आ रहा है आपको फॉर्मूले में, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे विच इज 48 गिवन इन द क्वेश्चन एंड जस्ट सॉल्व इट। 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Question number 6 is about the sum of the ages of the father and son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was the son age? We need to find the son age 6 years ago. Okay. इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का जो बेस्ट क्राइटेरिया होता है ना, आपके पास सब कुछ स्टेटमेंट में गिवन होता है, आपने सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करना होता है और उसको जिस तरीके से आपका फॉर्मेट आपको समझ आती है उसमें उसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपको ना फादर की एज एग्जैक्ट पता है और ना आपको सन की एज एग्जैक्ट पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों की एज को लेट करो, ठीक है। सो लेट एज ऑफ सन
equals x and age of father equals y. ओके, यहाँ तक तो समझ आ गई ना? हमें इन दोनों की एज का नहीं पता, तो हमने उसको सपोज कर लिया कि वो x और y है. नाउ read the question again. The sum of the ages of the father and son is 72 years. कि अगर हम इन दोनों की एजेस को ऐड करते हैं तो उसका आंसर 72 आता है. ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों की एजेस क्या है? x एंड y, राइट. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं x प्लस वाई, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 72 आता है. तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाती है. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को. 6 years अगो, ठीक है, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन. सबसे पहले हम इसको क्रैक करते हैं. 6 years अगो, 6 years अगो मीन्स कि 6 साल पहले, तो मतलब माइनस हो रहा है उसकी एज. ठीक है, अभी जो सन की एज है उससे हमने 6 साल पहले वाली एज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सन की एज क्या हो जाएगी? x-6 हो जाएगी, और फादर की भी एज क्या हो जाएगी? y-6, 6 साल पहले वाली एज. ठीक है, अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो फादर की जो एज है ना, वो 6 साल पहले 2 times थी एज ऑफ सन के. तो अभी हमने क्या क्रैक किया कि ये है एज अभी फिलहाल 6 साल पहले की सन की, और ये फादर की एज है. तो वो कह रहे हैं कि जो फादर की एज है ना, वो इससे 2 times है. तो बस सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ जो सन की एज है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो 2 times हो जाएगा. इजी. इस तरीके से आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है. अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर इक्वेशन. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को आपने x से भी मल्टीप्लाई करना है और 6 से भी, विल गेट 2x माइनस 2 6 are 12 इक्वल्स y-6. यहाँ पे आपके पास 2x विल रिमेन एज इट इज, एंड -6 को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो -12 प्लस 6 इक्वल्स y. -12 plus 6 is -6. So 2x minus 6 equals y. राइट. यहाँ से हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई है, जनरल वैल्यू आ गई है. ठीक है, इक्वेशन 2 से, तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. और यहाँ वी कंसीडर कि y इक्वल है 2x माइनस 6 के, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे. जस्ट सिंपली राइट, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. ना, इक्वेशन 1 इज x की जगह पे x ही रहेगा, प्लस y किससे रिप्लेस हो जाएगा? 2x माइनस 6 से रिप्लेस हो जाएगा, एंड 72 विल रिमेन एज इट इज. नाउ x प्लस 2x इक्वल्स 3x, और -6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, इट विल बिकम +6, एंड 72 प्लस 6, 3x इक्वल 72 प्लस 6 इज 78. 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, इट विल डिवाइड 78, and we'll get x equals 78 divided by 3, x equals 26 years. तो हमारे पास सन की एज आ गई है 26 years. ओके, उन्होंने हमें ये बोला है कि बिफोर 6 years अगो फाइंड करनी है. तो बिफोर 6 years अगो हम लोगों ने क्या सपोज की हुई थी? x-6 सपोज की हुई थी. ठीक है, तो अब यहाँ पे y को ना फाइंड करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो y थी वो हमारे पास फादर्स की एज थी, और हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने जस्ट सन की एज पूछी है. ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करना y की वैल्यू पे, तो हमें सिर्फ सन की एज चाहिए बिफोर 6 years अगो. तो यहाँ पे आप लिखोगे बिफोर 6 years अगो एज ऑफ सन इक्वल्स बिफोर 6 years ago एज ऑफ सन इक्वल्स x-6, और x हमारे पास क्या आया है? 26 - 6 which is equals to 20, and 20 is your final answer. Okay, now let's see question number 7, which is Mirha bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? ओके, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है विच इज 1500, और उसकी सेलिंग प्राइस भी गिवन है 1520. आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप इसका प्रॉफिट फाइंड करोगे. प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट का आपके पास फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. कि उसने 1500 का लिया था और 1520 का उसने बेचा, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 1500 में से 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो 20 रुपए, राइट.
तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका प्रॉफिट फाइंड करो। प्रॉफिट का आपके पास फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम इन शॉर्ट एस डॉट पी लिखते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इन शॉर्ट सी डॉट पी। Okay, now we get the profit of rupees 20 and we need to find its percentage. तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमें कितना मिला है 20 रुपीज का, और हमने एक्चुअल में कितना पे किया था उसके लिए 1500। एक टॉय के लिए मेरा ने पे किया था, उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देन यू गेट द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो इफ वी कैलकुलेट इट, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 4 डिवाइड बाई 3 अगर करें तो हमारे पास 1.3 आता है। ठीक है, 1.33%। ठीक है, तो इतना आपके पास आ जाता है परसेंटेज प्रॉफिट। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओह, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 8? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज स्किप। चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को हम बाद में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compound annually। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिस वन इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, जो एक्चुअल अमाउंट आपके पास गिवन है, और यहाँ पे आपके पास टाइम भी गिवन है जो कि 1 ईयर का है। दिस इज योर टाइम, और आपके पास उन्होंने रेट भी बता दिया विच इज 14%, एंड यू नीड टू फाइंड द मार्कअप। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है कंपाउंड मार्कअप इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट के मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट एंड डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास गिवन है विच इज 3,75,000। टाइम इज ऑल्सो गिवन विच इज 1 ईयर, मल्टीप्लाई रेट इज ऑल्सो गिवन विच इज 14। ओके, पर होल डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज उसी में कन्वर्ट हो गया। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, इसको आप 14 से मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, so in question number 8 the total income of the year is given which is 9,60,000 rupees। ओके, और exempted amount is this कि इतनी अमाउंट पे उसके पास उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी जो अमाउंट रह गई है जिसके ऊपर उसको टैक्स देना है वो कितनी है, सबसे पहले तो हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, टैक्सेबल इनकम हम फाइंड करेंगे जिसके ऊपर उसने टैक्स देना है। तो वो हम क्या करेंगे कि जो टोटल है दिस वन 9,60,000 में से हम 1,30,000 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 8,30,000 रुपीज। अब इस अमाउंट पे उसने टैक्स देना है, और उसने बता भी दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि टैक्स का वो कितना टैक्स का रेट होगा, 0.7% टैक्स रेट है। ठीक है, तो 0.7% टैक्स रेट है, और इतनी अमाउंट पे होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि वो कितना टैक्स अमाउंट पे करेगा वो फाइंड करना है, और उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि आपने 0.75% को मल्टीप्लाई करवाना है 8,30,000 से। ओके, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, सोल्व करेंगे, परसेंटेज है ये 100 हो जाएगा अगर आप इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ओके।